Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's newspaper session, we will be taking up the important topics and articles from the newspaper of 11th October 2024. So yesterday itself, there was a mental health day and we read a whole sum of information regarding mental health. कैसे वो important है, how are the ways and means by which we can actually have a healthy mental health and कैसे that is a part of being healthy and disease free which is often ignored. But now, with the changing of the trends and there's a growing importance of mental health and growing awareness regarding therapies, etc., especially in the urban areas. तो ज़्यादा intervention चाहिए for the rural areas as well. Similar lines पर ही there is an initiative of Telemanas. So Telemanas is a service or the National Tele Mental Health Program of India. तो वो ऑफर करता है इस सर्विस को एंड ये 24/7 मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड. Again, it can help in providing assistance with regard to all these conditions, be related to anxiety, mood disturbances, etc. तो मोस्ट स्कॉलर्स और ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट स्कॉलर्स और 56% वो मेल्स होते हैं जो कि एजड है फ्रॉम 18 to 45 and they seek advice regarding their own mental health. And while 20% are the caregivers. So again, this is not just important for the patient themselves, but also for their uh, caretakers, कि कैसे they can help here. तो ये largest deployment है globally. And privacy considerations are threaded into the platform's operation. So privacy, data storage, access control, and caller specific protocols, these are all to be managed. So iska again assistance, this will reach Puducherry soon. So coverage enhance हो रहा है इसका. तो here we can talk about digitalization. कैसे ऑनलाइन ही गवर्नमेंट से we can take such help. पहले के टाइम पे obviously during the 1780s we could never even think of such facilities being provided. But now with the changing times and changing needs, the solutions themselves are evolving. Further, the grueling course of litigation in India. So even President Draupadi Murmu has highlighted the issue of court delays. जब हम बात करते हैं pendency of cases और even the black court syndrome. जैसे हम white court syndrome की बात करते हैं with regard to the hospitals or perhaps the doctors. कैसे वहां पर there is a whole sum of physical and mental and emotional strain that an individual faces. Similarly, even in courts, जो प्रोसेस होता है ऑफ होल लिटिगेशन प्रोसेस, इट इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत सारे एफर्ट्स और इकोनॉमिक स्ट्रेन हर एरिया से द पर्सन बिकम्स मोर वल्नरेबल, especially the lower and the middle class for that matter. तो इस वजह से क्या होता है, many people are even reluctant to engage in litigation due to the endless adjournments, numerous appeals, and escalating legal costs. So challenges again इन्हीं areas में है with regard to the cost, the time taken, and the efforts that are put in with the numerous number of visits. अब बात करते हैं कि अगर what are the changes that must exist here. तो केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स है, दे वर इंट्रोड्यूस फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट ताकि प्रोसेस और जरिए स्ट्रीमलाइन हो सके, सेट टाइमलाइंस एंड क्रिएट मोर प्रिडिक्टेबल कोर्ट शेड्यूल्स. तो जब हम बात करते हैं जुडिशियल क्लॉक को सेटअप करने की, जिसमें अगेन जो केसेस हैं उनके लिए डेडलाइंस दे विल बी सेट एंड मोर प्रिडिक्टेबल कोर्ट शेड्यूल्स जिससे कि स्ट्रीमलाइनिंग हो ऑफ प्रोसेस का. This can be one method. Another method that currently exists is regarding the alternate mechanisms with respect to the courts. जैसे अगर हम लोक अदालत की बात करते हैं, we also talk about tribunals, etc. So these are all the ways or in which we can prevent the burden on the actual or the main spine of the judiciary, that is the Supreme Court, High Courts, and the district courts. Further, third, we also discussed about the role of the mediators.
कि कैसे जो मीडिएटर्स है दे कैन हेल्प इन सॉल्विंग द केसेस बिफोर हैंड, ताकि वो कोर्ट में ना जा सके एंड प्री हैंड पर ही दे गेट सॉल्व्ड एंड द इशू गेट सेटल्ड. Fourth, we also discussed regarding the role of the or perhaps settling of the petty crimes, कि जो crimes इतने ज्यादा important नहीं है which actually need courts etc. तो उनके लिए there must be a solving at prior stages themselves. Specifically, again, tribunals can be such examples. These are the major 4 points here. And fifth, we can also talk about the various um, or electronic initiatives with regard to the filing of the cases, with regard to the FIR or even cases in the judiciary. So, judges, lawyers, litigants, and witnesses act with rationality and good intentions, though their actions are influenced by various constraints and incentives. तो further सबसे जो stakeholders हैं उन सबको information में लेना है, and it is essential to have an holistic approach in this manner. Further reforms में अगर हम बात करते हैं तो even the presence of low number of judges per population, जैसे अगर हम इंडिया का ट्रेंड देखते हैं तो देर आर करेंटली अराउंड 20 जजेस पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो मैंडेट है दैट इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ 50 जजेस पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन. तो इंक्रीज होना चाहिए और फिर रिक्रूटमेंट. दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द मेजर्स. और जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट आया था उसके रिगार्डिंग भी, फॉर द जुडिशरी में ही वी ऑल्सो हैव दिस कंसर्न रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. These are all the ways here that are related to judiciary. Next, the blue-blooded sea creature on Odisha's coastline. So, the horseshoe crabs, they have been around for millions of years. The horseshoe crabs, but their habitats are increasingly being degraded. तो मूवमेंट्स को ट्रैक करना बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड उनका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. अगर डिक्लाइन हो रहा है बहुत ज्यादा तो रीस्टॉक द पॉपुलेशन थ्रू आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, या फिर वी कैन प्रोटेक्ट द स्पॉनिंग ग्राउंड्स. तो हॉर्सशू क्रैब्स के रिगार्डिंग है ये. एंड हियर एज इट इज मेंशन के जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इट कंडक्टेड द फर्स्ट डिटेल सर्वे ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स along the east coast of India in 2005. Is a survey, it resulted in the listing of crab in the Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 1972. और डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में आई है इन दी IUCN स्टेटस. तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीशीज. तो फर्दर एनवायरमेंट कंजर्वेशन का ही टॉपिक है ये, एंड इसमें वी कैन इवन मेंशन दिस एग्जांपल horseshoe crabs. तो procreating with nature. So, the tides play a crucial role in arrival of horseshoe crabs on the Odisha's beaches. Next, can India escape the middle income trap? So, when we discuss about the middle income trap, ये होता है क्या exactly? So, middle income trap, it refers to the slowdown of growth as economies reach middle income status. तो स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ, तो मिडिल इनकम स्टेटस क्या है? तो इट इज द स्टैग्नेशन ऑफ इनकम पर कैपिटा व्हेन द इकोनॉमीज रीच अ लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम्स 11% ऑफ दैट ऑफ द यूएस. तो वो हिंडर करता है देयर जर्नी टू हाई इनकम स्टेटस, और बहुत ही कम कंट्री ऐसा कर पाएंगे. इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग वी हैड रेड कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ द 3I अप्रोच. 3I अप्रोच क्या है? इट इज इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन. कि कैसे जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना, डेवलपिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द डोमेस्टिक इनोवेशन.
This is a crucial task here. इसमें फिर again role of state आ जाता है, where we talk about the facilitated growth and mobility of capital and labor for its members. जैसे अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो साउथ कोरियन स्टेट वाज हेविली इंटरवेंशनिस्ट, often directing the private sector's activities and ensuring their participation in an export-driven growth model. Further example was of Chile as well. तो targeted interventions होने चाहिए in this case. So there must be a strategy that must be created here specific to the country itself. तो premature deindustrialization. Modern economies वो face करती हैं reduction in the income share of manufacturing at much lower level of GDPs as compared to the previous economies. इंडिया की बात करते हैं तो क्या challenges है इधर, तो power of billionaires in Indian economy has increased and they are seen as being close to the state. Stagnating manufacturing sector, जिसके लिए again there are various steps being taken, be it regarding the reduction or maybe not that much taxes that are there for the uh, manufacturing, and also regarding the import substitution के regarding जब हम बात करते हैं, further schemes like PLI, तो इन्हीं के basis पर there are majorly uh, the manufacturing growth is taking place. Further, how does UK's Open Safely ensure transparency? So, Open Safely क्या है? Again, it is a platform created by Ben Goldacre and his team at the Oxford University. तो ये enable करती है publication of studies involving data from 20 to 30 million patients, facilitating the important health research. तो प्राइवेसी के रिगार्डिंग रिसेंटली इटसेल्फ वी हैड रेड अबाउट द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, तो दैट वाज रिगार्डिंग द डिजिटल डेटा उसकी सेफ्टी के लिए, फॉर द डेटा सेफ्टी. सिमिलर लाइंस पर ही इन ऑल द रिगार्ड्स और द प्लेसेस, जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं तो इन सब एरियाज में प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट. Astute industrialist, visionary business leader, mentor to many. So this is with the demise of Ratan Naval Tata ji. So he was a chairman of Tata Trust. He enabled countless NGOs to bring about transformative social changes and leave a mark in society. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कैसे जो एक इंसान का कंट्रीब्यूशन होता है और दी सेल्फलेसनेस या फिर द केयर फॉर द सोसाइटी एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है, इट कैन प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, नॉट जस्ट इन स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी बट ऑल्सो एज सेटिंग अप ऑफ एन एग्जाम्पल, जिससे कि इवन अदर्स कैन गेट इंस्पायर्ड एंड देयर बाय वो एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे कि मोर वेलफेयर कैन बी प्रमोटेड. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे प्रपोज भारत रत्न फॉर रतन टाटा. तो ही नर्चर्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. तो जो ऑलरेडी हमारे डीपीएस में भी मेंशन्ड है कि रिगार्डिंग द बिल्डिंग ऑफ द साइंटिफिक टेम्परामेंट. So these are all the values which can again help in broadening the mind. Further, he was also very fond of dogs and उनके केयर के लिए भी he had taken many steps, जैसे कि building of a hospital as well. तो इसमें there was also an example regarding the awareness that we
keep for our surroundings. They said there were several dogs that were dying due to accidents on roads and highways specifically. मेजरली क्योंकि वो विजिबल नहीं होते थे, तो जैसे उनके लिए वो रेडियो कॉल और बेल्स क्रिएट करना फॉर देयर नेक्स which can emit light and can be visible, and therefore they can be visible, and the loss of life it can be prevented. So he was also aviation enthusiast. Next, AI generated medical images, a new frontier or potential pitfall. So with the increased use of AI, artificial intelligence, so it is a kind of intelligence that mimics the human intelligence. And various and emerging technology है just like machine learning, robotics, etc. तो इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे अभी हमने 3 आई के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें भी जैसे इनोवेशन was one of them. So here AI can also play a very crucial role here. And so interventions है इसके in the various areas, be it regarding the health, जैसे imaging में जो help होती है, and also regarding the various other areas in terms of agriculture, predictability. तो इन सब areas में it can be helpful. Important इंडिया के लिए है to make a specific law with regard to it. क्योंकि challenge मेजर ये है कि there is no specific law which can regulate the various aspects or the negative falls of AI, with regard to the ethical use या फिर even the data safety and privacy. Creativity का भी एक concern आता है with regard to AI itself. तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एआई इज यूज्ड इन मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विस एग्जांपल बताना है। तो फर्स्ट वुड बी रेटिना स्कैनिंग हो गया। विद द हेल्प ऑफ रेटिना स्कैनिंग इट इज प्रोबेबल टू सी इफ द पर्सन इज हैविंग डायबिटीज और नॉट। ये नहीं पता चल सकता है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैनिंग हो गया, न्यूरॉन्स स्कैनिंग। विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन स्कैनिंग इट कैन बी पॉइंटेड आउट कि व्हाट एरिया ऑफ द ब्रेन एक्साइट्स विच टाइप ऑफ इमोशन, उससे आइडिया हो सकता है। फिर यूज ऑफ इमेजेस ऑफ द कैंसर सेल, बाकी सबसे इट कैन बी डिटरमाइन प्रोटीन। जो हम लोग मेडिकल इमेजेस की बात करते हैं, प्रोटीन के जो इमेजेस है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन की जो मेडिसिन है इट इज यूजफुल और नॉट टू डील सच काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके लिए अभी मिला भी है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिटरमाइन द प्रोटीन सिंथेसिस, नोबेल प्राइज ही मिला है। तो सिंथेटिक इमेजेस वो एक तरह से मिमिक करेगा। इट विल इंक्रीज मोर एंड मोर opportunity for doctors as well as a patient to have a certain kind of a data of the patient। लेकिन क्वेश्चन उठता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंश्योरेंस कंपनीज यूजेस द डेटा टू सेल देयर इंश्योरेंस मॉडल। तो पेशेंट का डेटा है इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा सिंथेटिक डेटा एल्गोरिदम जो यूज करेंगे, जो डीप फेक यूज करेंगे, इट हैज टू बी वेरी रेगुलेटेड बिकॉज इसके अंदर में चांसेस भी है कि जो पेशेंट को दिखाया जा रहा है डेटा कि आप में ये प्रॉब्लम है, हो सकता है मैनिपुलेटेड हो विद द यूज ऑफ एआई। तो कुछ कॉशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिव सोल्यूशन होना चाहिए बिटवीन द सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियर हो गया। फर्दर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एज वेल एज इंटरनेशनल हेल्थ के स्टैंडर्ड IS under the WHO which talks about long term setting of a standard with regarding to the healthcare services, उसमें भी AI इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा बात करके अगर AI को सिर्फ रोल यूज नहीं कर सकते फॉर द सोनली ऑन द सिंथेटिक डेटा, कहीं ना कहीं वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर AI को सिर्फ ट्रेन करेंगे तो हो सकता है तो एल्गोरिदम बायस हो
उसके कारण जो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कुछ सर्टेन डिजीजेस का होने का, वो बढ़ सकता है। डॉक्टर्स का ट्रेनिंग एंड डॉक्टर्स का जो कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है विद द एआई, it should be very in a syncretic manner rather than totally dependent on the AI system. तो इसलिए लिखा हुआ है कि दिस कुड लीड टू द इंटायर डायग्नोस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल रियलिटीज rather than ट्रू पेशेंट डेटा। फैब्रिकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन भी मेंशन है, बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड ट्रूथ इज डेलिकेट। हम्म। लिखा है व्हाई डेथ अकर्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक। व्हाई दिस इज न्यूज? बिकॉज ऑफ अ रिसेंट डेथ ऑफ 5 person in Chennai when they were participating in air show। हम्म। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे होता है। तो एग्जॉशन और इनएबिलिटी टू एलिमिनेट इंटरनल जनरेटेड हीट। जब हीट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर में, तो गट बैक्टीरिया भी एक तरह से इट बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव। हम्म। मूवमेंट और इवन द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बिकम मोर एंड मोर रेस्पॉन्सिव टू द सिस्टम। तो 40.6 डिग्री बढ़ सकता है रेक्टल टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन, इट ऑल्सो थिकन्स द ब्लड और इम्पेयर सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर उससे कम हो जाता है, सैचुरेशन कम हो जाता है। फ्लूइड के लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण डिहाइड्रेशन होता है। उसी कारण ब्लड जब कम होता है तो उसको पंपिंग करने में ज़्यादा हार्ट को एक एफर्ट लगाना पड़ता है, उससे हार्ट बीट बढ़ता है ताकि ब्रेन तक पहुंच सके ऑक्सीजन। जब ज़्यादा कम होगा सोडियम पोटेशियम का डिफरेंसेस, इट कॉजेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसके कारण किडनी इंजरी या बाकी सब हो सकता है। Older people are vulnerable to heat stroke as the skin is tender. They can easily get dehydrated over the long period of time. हम्म। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना चाहिए? सोसाइटी लेवल पे हम लोग बात करते हैं कि हीट एक्शन प्लान हो गया, या फिर जो फंक्शनिंग व्हेन यू आर होल्डिंग सच काइंड ऑफ लार्ज इवेंट, केयर शुड बी मेड कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इवन शेड शुड बी देयर। जैसे हुआ नहीं तो वहां पर ओपन सिस्टम था इसलिए, और शेड प्रोवाइड कैसे कर पाते। सेकेंड, अगर इंडिविजुअल लेवल पर आपके पास, हमें अगर आपको पता है कि आप जा रहे कहीं फंक्शन में, तो बॉटल के अंदर में बेसिक जो ओआरएस या होना ही चाहिए अगर गर्मी के समय है तो। एंड ऑल्सो ऐसे लार्ज कैप का यूज प्लेसेस। ऑफ कैप हो गया, इवन यूज ऑफ जो ट्रेडिशनल गमछा कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन मिटिगेशन ऑफ हीट। एंड ऑल्सो जो लार्ज प्लेसेस हैं जैसे कि मेका में भी हमने लिखा था एग्जाम्पल, तो उधर भी हाँ, बड़े बड़े 1,500 people वाटर have died कूलर्स। in Mecca। एंड गमछा में भी जैसे हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन को जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब करता है, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉटन क्लोथ्स, मोर ऑफ कॉटन क्लोथ्स। हम्म। तो आउटडोर एक्टिविटीज कैन रिड्यूस प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? तो अगेन जब मायोपिया शॉर्ट शॉर्ट साइटेड, साइटेडनेस, हाँ, जब फार का दिखाई नहीं मतलब देता, कि शॉर्ट सामने दिख, साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब सामने, हाँ। एंड वो दूर का दिख। हाइपरमेट्रोपिया इज व्हेन फार साइटेडनेस, जब पास का दिखाई नहीं देता। लेंस कौन सा यूज होता है मायोपिया के लिए? इट्स कॉनकेव। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज होता है। फर्दर प्रेस बायोपिया की हम बात करते हैं जिसमें दोनों लेंसेज यूज होते हैं, बायफोकल लेंस। तो अभी एक प्रेस बायोपिया को डील करने के लिए हम्म। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, उसके बारे में पता है? एक कोई मेडिसिन आई थी आई गेस। हाँ, ड्रॉपलेट था, जिसके हाँ, कारण जो, हाँ, जो लेंसेज है आंख के अंदर में इट कैन डायलेट और इट कैन कन्वर्स डिपेंडिंग ऑन द इशू। तो उसको अप्रूव किया गया बाय एफसीसी, बाय द सीडीसीएसयू।
लॉन्ग हम्म। करने के लिए। हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ हाइपर दोनों के लिए, प्रेस बायोपिया के लिए। हम्म। तो ऐसा क्यों है कि आउटडोर एक्टिविटी कैन रिड्यूस प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया? कैसे? ज्यादा नेचुरल लाइट आएगी और ज्यादा जो डिवाइसेस है उनसे दूर रहेंगे, तो बेटर आई साइट। ट्रू। फर्दर रबिंग ऑफ द आईज, हम्म। स्क्विंटिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, आंख रात में देख रहे हैं उसको, मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं। नेचुरल सनलाइट कैन ऑल्सो मिटिगेट द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। हम्म। एडिक्वेट स्लीप होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल बिलोंगिंगनेस वो चिल्ड्रन का बढ़ता है। उसके कारण जो बॉडीली फिजिकल हेल्थ है वो भी सिक्योर हो सकता है। प्रोएक्टिवली करिकुलम टू इंक्लूड आउटडोर एक्टिविटीज। DU panel approves plan to look for alternative source of funding. When we talk about funding issue or even the autonomy of the various university in India, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आया था, इसमें हायर एजुकेशन में फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था, कैसे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी है इन इंडिया, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट रादर देन इंडोमेंट। हम्म। उससे क्या होता है कि पॉलिटिशियन ऑफ द स्टाफ administration as well as intervention by the government regarding the appointment of the VC, chairman, etc. The allegation of plagiarism of the internationally acclaimed university. तो जब कल्चर ऑफ डिसिप्लिनरी रिसर्च इन स्ट्रेंथनिंग द यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिलेशन टू इंक्रीज द मार्केट आउटपुट of the research as well as skill based employment opportunities, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए विद इन द सिस्टम, विद इन द DU। तो क्या किया जा रहा है इसमें? तो फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लैबोरेटरी। तो फॉर एग्जाम्पल IIT में कैसे होता है, वो भी डिपेंडेंट है। 8,000 करोड़ अराउंड 9,000 करोड़ इट इज गिवन टू द IIT सिस्टम। इंडिविजुअल IIT के अंदर में इंडोमेंट भी होता है, उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट इंडोमेंट होता है, उनके नेम होते हैं, उन पर इंस्टीट्यूशन बनाया किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लैब है, उसका लैब का नाम दिया जाता है जो फंडिंग किए थे। फॉर एग्जाम्पल वहां पर राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, उसके साथ साथ एक MBA स्कूल है जो टोटली डिपेंडेंट ऑन द एंडोमेंट है वहां पर। विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो विनोद गुप्ता सर थे, दे हैव ही हैड गिवन अ लॉट ऑफ फंडिंग टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन। तो वैसे ही वहां पर भी प्रोफेसर भी कर सकते हैं, इंडोमेंट हो सकता है, सोशल ऑडिटिंग हो सकता है, रेजिंग ऑफ बॉन्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिलेशन उसको बढ़ा सकते हैं। This will lead to large production of the dissemination of the information as well as मार्केट ओरिएंटेड स्किल। लेकिन क्वेश्चन तब उठता है कि अगर गवर्नमेंट का एंडोमेंट कम होगा, अगर गवर्नमेंट का ग्रांट कम होगा, तो क्या जो ऑटोनॉमी जब बढ़ेगा, क्या जो ऑटोनॉमी है इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिविटी। क्या वो जो DU है इट विल स्टिल मेंटेन in the hiring as well as hiring of the professor as well as maintaining the diversity and inclusivity in the curriculum as well as students, जेंडर रेशियो कैसा रहेगा? तो ज्यादा ऑटोनॉमी, क्या वो इट विल बी ए सक्सेसफुल मॉडल? तो इसमें भी एक क्वेश्चन उठता है। हम्म। जैसे लिखा है पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, अर्न वैल्यू लर्न हो गया वहां पर भी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट, रिवाइज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, तो ये दो टाइप का कि एजुकेशन
is only for the industrial requirement or education is a for 360 degree approach. जरूरी नहीं है ना किसी को इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है, उसको तो रिसर्च करना हो सकता है, उसको जो डीप जो एरियाज रिसर्च है उसमें इंटरेस्ट है। तो कॉर्पोरेट एजेंडा क्या वो ड्राइव कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, कि इनोवेशन ड्राइव कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को? तो नेक्स्ट, चागोज आइलैंड 7 अटोल्स होते हैं। अटोल्स इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ रीफ वेयर it is a it is in a concentric circle, or in the middle of the reef, uh, due to the own weight it creates a crater. तो सो अटोल बोलते हैं, अडू अटोल। तो 16-17 सेंचुरी से बात हो रखा है। क्यों जो अटोल था मालदीव अटोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर शिप इट यूज टू लैंड फॉर द डिस्टेंट ट्रैवल। अफ्रीका कनेक्शन भी है उसका। इट हैड अ वेरी साइजेबल अफ्रीकन पॉपुलेशन because of the trader brought slave to the Maldives and Chagos from the Africa. When then Great Britain began to decolonize its Indian Ocean territory, so there was no logical reason why Ireland should be handed to Mauritius. तो इम्पोर्टेंट क्यों है इंडियन ओशन का उस रीजन के? तो फिश स्टॉक, बिकॉज ऑफ द ग्रीडी फैक्ट्री ट्राउजर्स, it is operating from the country outside the Indian Ocean. In Maldives, fisher uses pole and line one by one fishing technique. Hmm. तो एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इंक्रीज द रोल है ऑफ द इन द इंडियन ओशन रीजन, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इनिशिएटिव हो गए सागर और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इंडिया का अगर स्टैंड देखते हैं तो इट सपोर्ट्स द मॉरिशस क्लेम ओवर द आइलैंड्स। Hmm. और फर्दर जो इंटरनेशनल रूलिंग्स की बात करते हैं तो 2019 में आईसीजे ने रूल करा था, यूके's continued control of the Chagos Islands, it is unlawful and that the island should be returned to the Mauritius. Hmm. Next. In Jammu and Kashmir, it was a vote for strengthening the democratic process. तो तीन पॉलिटिकल पार्टी, चार पॉलिटिकल पार्टी है और बाकी छोटे पार्टीज है। फॉर एग्जांपल बीजेपी, पीडीपी, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आईएनसी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएनसी दोनों का गठबंधन है, दोनों का अलायंस है। बीजेपी अकेले लड़ रही थी और पीडीपी। तो महबूबा मुफ्ती और जो मुफ्ती फैमिली है दे आर एसोसिएटेड विद पीडीपी, वेर एस जो अब्दुल्ला फैमिली है दे आर एसोसिएटेड विद एनसी फारूक। Sheikh Abdullah was also called a prime minister of Jammu and Kashmir during Jawaharlal Nehru's when he was a PM. Later on, Sheikh Abdullah became CM. उसके बाद फिर 50-60s में, 70s में, 80s में फारूक अब्दुल्ला है, फिर अभी उमर अब्दुल्ला। तो वापस से एनसी हैव वॉन अ लॉट ऑफ सीट, मोर देन मेजोरिटी। तो मोस्ट प्रोबेबली उमर अब्दुल्ला विल बी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनका जो स्टेटमेंट था परसों विथ रिगार्डिंग टू द पीस प्रोसेस इन जम्मू कश्मीर विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बताया कि ईगोइज्म बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी अवॉइडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट, the state government has maintained a healthy relationship between the several
ideology of the central government, irrespective of which party is in power. So, in future also, the aspiration of the people of Jammu Kashmir will be protected and it will be secured through a healthy channel. तो ये दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पीस प्रोसेस है इट इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि जहां जहां पर फॉर एग्जांपल जम्मू इट इज मोस्टली हिंदू मेजोरिटी, जो कश्मीर रीजन है तीन चार डिस्ट्रिक्ट इट इज मुस्लिम मेजोरिटी। जम्मू में 30 सीट है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ हिंदू मेजोरिटी सीट है, वहां पर 29 वहां बीजेपी को मिला। जो कश्मीर रीजन है वहां पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर एनसी को मिला। जो पीडीपी और जो दूसरे एक पार्टी थे जो जमात थे आई थिंक, कुछ पार्टी जापान जो सेपरेटिस्ट थे उनको तो नोटा से भी कम मिला, 1300 वोट, ऐसे बहुत बहुत कम होते हैं। तो ये दिखाते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं 360 370 आर्टिकल 370 which was abrogated in 2019 5th of August, it तो उसका लेजिटिमेशन to the use of democratic process was done through election right now। क्योंकि क्वेश्चन उठता था कि स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और स्टेटहुड तभी हो पाएगा जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए, जो टर्नआउट रहा है, और एक तरह से वहां पर जो इलेक्शन हुआ इट वॉज नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ अ वायलेंट एक्टिविटीज एज कंपेयर टू बिफोर। तो जो वर्ल्ड वाइड जो एक तरह का लेजिटिमेसी है विथ रिगार्डिंग टू द 370 एब्रोगेशन वो दिखता है। तो इसमें क्यों वोटिंग मिला है, तो 5 6 7 कंडीशन है। पहली बात है क्वेश्चन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ 370। उसमें भी सबने कहा कि होना चाहिए ऐसा। विजिबल ट्रस्ट डेफिसिट भी है कुछ कुछ जगह पे प्रोसेसेस में। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, एक वो एक चैलेंजेस था। पोलराइजेशन था ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्डिंग टू कश्मीर वैली, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो सेंसिटिविटी है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, क्या वो अपहोल्ड हुआ, उस पर एक था इलेक्शन। डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन इन रूटीन इलेक्शन प्रोसेसेस, आइडेंटिफिकेशन फेयरली सिग्निफिकेंट। जो हाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट मेंशन पार्टी इज अ की डिसाइडिंग फैक्टर, कि कौन से पार्टी की क्या ऑफर कर रहा है। डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हुआ, वही एग्जांपल मैंने बताया कि कश्मीर में डिफरेंट है, जम्मू में डिफरेंट है। एनसी एंड कांग्रेस मोस्टली दे हैव वन सपोर्ट फ्रॉम द यूथ इन जम्मू, इन कश्मीर, जम्मू में बीजेपी को मिला मोस्टली। फिर वोटर का प्रायोरिटी क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था पहला, इन्फ्लेशन था, अलग अलग स्कीम्स था, एनरोलमेंट था। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उनका जो आइडियाज है लॉन्ग टर्म विजन विद रिगार्ड टू कश्मीर एंड ऑल्सो जम्मू, वो तभी पूरा हो सकता है जब देर इज अ व्हेन रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो। उसके लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट जो हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वी डिस्कस द इंडियन एशियन रिलेशन, तो उसमें बस एक पॉइंट याद रखना है कि म्यांमार में इसमें है और पूरे एशियन कंट्रीज में, एक्सक्लूडिंग साउथ कोरिया की वो नहीं आते इसमें, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इस तरह, इंडो चाइना वाले रीजन, इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर प्लस थाईलैंड म्यांमार, ये पूरे रीजन आते हैं। तो इंडिया और एशियन के बीच में एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्लस शंग्रीला डायलॉग है 2018 का, जिसमें बात होता है कि कॉपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ट्रेड इन द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और एक एशियन सेंचुरी तभी आ सकता है जब big power such as Japan, China, and India they can collaborate, as well as ASEAN, that is the prime area for developing of the region, वो
प्रमोट होगा. तो enhancing the connectivity and resilience, प्राइम मिनिस्टर हैव अनाउंस 10 पॉइंट प्लान. पहला है कि टूरिज्म, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कैसे सेलिब्रेट किया जाए स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकाथॉन, म्यूजिक फेस्टिवल, दोनों बीच में डायलॉग, विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, इंडिया एशियन ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, यूनिवर्सिटी एंड, और बोल सकते हैं कि दोनों का जो स्कॉलरशिप है उस पर फोकस किया है, साइबर पॉलिसीज डायलॉग, ग्रीन हाइड्रोजन पर, प्लांट ए ट्री फॉर मदर कैंपेन, और डिजास्टर रेजिलियंस. तो जो भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट की सेक्टर है हर एक फील्ड. तो इसलिए एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, इट विल सपोर्ट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. दैट इज वाई द होल इंडो पैसिफिक रीजन वुड बी सिक्योर्ड. तभी जाकर वहां पर पीस, स्टेबिलिटी, मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट इन रीजन एंड लॉफुल यूज ऑफ सी, इंक्लूडिंग कॉमर्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. ये इतने सारे की एस्पेक्ट है दैट डिफाइंस द ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन. प्लस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का रोल, सिविल एविएशन, आईएमओ और डिटरमाइन करेंगे. कोड ऑफ कंडक्ट और ऑल्सो द इंक्लूजन ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, इट इज अकॉर्डिंग टू द यूएन क्लॉज 1982 में लॉ जो आया था, कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी. हर एक फील्ड में, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, डिफेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, सब में काम कर सकते हैं. 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT, ब्लॉकचेन, AI, सब. 10 मेंबर है, सभी है इसमें. और नेक्स्ट करो, कंटिन्यूएशन है. नेक्स्ट नीचे. और पेमेंट सिस्टम को भी लिंक करेंगे, जैसे इंडिया सिंगापुर में यूपीआई यूज हो रहा है, फ्रांस में, वैसे ही वहां पर भी होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई. तो उससे जो रेमिटेशन है वो आसानी से हो सकता है. प्लस लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है कि टू इंटरनेशनलाइज द रुपी सिस्टम, टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ रुपीज दोनों के लिए. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपी के साथ किया गया था मालदीव्स के साथ बायलैटरल एक्सचेंजेस, इवन यूएई के साथ, इवन रशिया के साथ. तब लॉन्ग टर्म में हम लोग बात कर सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जॉइंटनेस इन साइबर सिक्योरिटीज. तो नेक्स्ट, जब भी फेस्टिवल आता है तो देर इज अ गाइडलाइन गिवन बाय द लोकल बॉडीज एज वेल एज द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड फॉर द फेस्टिवल. एक एग्जाम्पल यहाँ आइडल इमर्शन है फॉर दुर्गा पूजा अंडर द ईपी एक्ट 1986. इट इज अ कोर्सिव पावर, इट इज अ टूल टू मेंटेन पब्लिक डेकोरम एंड ऑर्डर. तो ओनली इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचुरल फ्लावर, नेचुरल कलर होना चाहिए. इमर्स माँ दुर्गा एट होम बकेट, ट्रेडिशनल क्ले, क्या नहीं होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होना चाहिए, थर्मोकोल नहीं होना चाहिए, यमुना और वाटर बॉडीज में नहीं होना चाहिए. और डू नॉट थ्रो वर्शिप मटेरियल फ्लावर्स इन रिवर. क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा में हर एक घर पे आइडल रहता है, और व्हेन दे आर इमर्स्ड तो क्यूमुलेटिव करके इट क्रिएट्स अ पॉल्यूशन. व्हेन द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द आइडल इज नॉट सस्टेनेबल, प्लास्टर ऑफ पेरिस और टॉक्सिक केमिकल कलर्स, इट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल बायो इकोसिस्टम, जिसके कारण एल्गी फॉर्मेशन होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, और कहीं ना कहीं सल्फेट फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट. इसमें we can also talk about the key term of sustainable celebration. एंड ऑल्सो हम्म. जो दुर्गा पूजा के जो पंडाल्स होते हैं उनको भी कैसे हम जैसे सिर्फ लीव से बना सकते हैं rather than using the POP idols etc. हाँ, लीव्स हो गया, फिर चटाई जैसे क्वायर हो गया, उससे बनाया जाता है. यहाँ पर हर एक पंडाल होता है, उसके अंदर में एक थीम होता है. एक हम्म. थीम जिसमें जो रीयूज प्लास्टिक था उसको यूज किया गया था, एक थीम में बैम्बू मटेरियल यूज किया गया था, एक में पेपर ऑरिगेमी को यूज किया गया था. तो अलग और अलग थीम. एक में वो कोपरा भी था, दैट इज द कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है.
हाँ, तो उसके लिए कोहेरेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं।